Good morning, students. Today we will start chapter 13 Limits and Derivatives. First is introduction part. This chapter is basically introduction to calculus. Now, calculus is the branch of mathematics which deals with the study of change of the value of a function at the point in the domain change. Means the quantities of rate of change of the concept of limit derivative, this comes under the limits and derivative, this comes under the calculus is the branch which deals with the rate of change of quantities. So let we have first the concept of limits and derivative. The concept of limit is we will consider a function fx x square minus 1 over x minus 1. ये फंक्शन कंसीडर किया जो एफ एक्स में है. नाउ इफ वी put x is equal to 1, we will find that this is 1 minus 1 over 1 minus 1, that is 0 upon 0 आ गया. So function has no meaning, means basically f of 1 जो है वो not defined है, 0 आ रहा है. Now if f of x can be factorized and simplified टू मेक ए रैशनल एक्सप्रेशन, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस वन को अब हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना लिए एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला लगाया. तो यहाँ से एक्स माइनस वन कैंसिल होके यू आर हैविंग एक्स प्लस वन. नाउ इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू वन, x is equal to 1, if we put x is equal to 1, the answer f of 1 will be 2, which is finite. Now if we put x is equal to 1, not put x is equal to 1 but slightly more than 1, the function fx will be slightly more than 2. इसको अगर 1 से ज़्यादा पुट किया तो 2 point something आ जाएगा. Now if we go on decreasing this value and take nearer to 1, then f of x will come nearer to 2. So this illustration is as follows. जैसे मैंने x को 1 पुट नहीं किया, थोड़ा सा ज़्यादा पुट किया 1.1, तो f of x हो गया 1.1 प्लस 1 यानी कि 2.1. फिर मैंने थोड़ा और कम किया, 1 से ज़्यादा ही है लेकिन कम, 1.1 से कम 1.01, द आंसर विल बी 2.01. If we put x is equal to 1.001, then f of x will be 1.001 plus 1 यानी कि 2.001, एंड सो ऑन. मैं डिक्रीज करता गया, x इज इक्वल टू 0. मैंने 9 पुट किया तो f of x 1.9 हो गया. इट इज लेस देन 2. 0.99 पुट किया, इट विल बी 1.99. 0.999 पुट किया, सो एफ ऑफ एक्स इज 1.999 एंड सो ऑन. नाउ what is our inference, what is our conclusion, that the value of x approaches to 1 from the right hand side. So f of x will approaches to 2, means if x arrow means approaches, if x approaches to 1 plus 1 प्लस कर रहा हूँ मैं, तो एफ ऑफ एक्स जो है दैट अप्रोचेज टू 2. दिस वैल्यू मैं 1 से राइट साइड से चल रहा हूँ, तो आई विल कॉल इट एज राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स. व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, द रिजल्ट विल अगेन दिस विल अप्रोचेज टू 2. एक्स मैंने 1 माइनस मीन्स 0.9 0.99 ये पुट किया, then fx also approaches to 2. This value is called left hand limit of the fx. In this case, left hand limit of f of x and right hand limit of f of x both are equal to 2. Thus we can say, write it as limit x tends to 1 minus, means left hand limit fx, limit fx x tends to 1 plus
मीन्स राइट हैंड लिमिट, और अगर मैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स टेंड्स टू 1, so the both will be equal to 2, which is equal to the limiting value of the function. Now in this case we will say that the limit will exist. Let we have another illustration. We will consider fx is x square plus x, and we want to find limit x tends to 1 of f of x. Now clearly from the table if you see, मैंने x1 लिया तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से पहले जा रहा हूँ 0.9. 0.9 इफ आई विल पुट हेयर द आंसर विल बी 1.71. फिर 0.99 आंसर विल बी 1.9701 एफ एक्स. इफ एक्स इज 0.999 एफ एक्स विल बी 1.997001. इफ आई विल टेक, अब ये तो लेफ्ट हैंड होगी, देन राइट हैंड 1.01 लिया 2.301, 1.1 पे 2.3, 1.2 पे 2.6 and so on. Now if I will check here the value 1.2, if I will approach from left hand 2.6, 2.3, 2.03 means लेफ्ट हैंड से भी ये 2 को अप्रोच कर रहा है, सॉरी राइट हैंड से भी 2 को अप्रोच कर रहा है, और लेफ्ट हैंड से भी ये 2 को अप्रोच कर रहा है 1.7, 1.9, 1.99, आगे 2 आ जाएगा. सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स. 1 पुट किया तो 2 आना ही है. सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, and this is the limiting value of the function at that point are equal, so therefore limit will exist. Let we have third illustration. fx is sin x and we want to find limit x tends to pi by 2 sin x. अब pi by 2 अगर माइनस से एग्जिस्ट करते हैं, माइनस से करते हैं तब भी ये 1 को अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से. पाई बाई 2 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करते हैं साइन एक्स की तो वो भी 1 को अप्रोच करती है. यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स साइन एक्स विच यू हैव प्लॉटेड इन योर लैब मैनुअल. लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स अगर पाई बाई 2 पुट कर दें तो साइन 91 ही होता है. सो इन general if x tends to a and fx tends to L, then L is the limit of the function and write it as limit x tends to a f of x is equal to L. Now second topic is algebra of limits. In the algebra of limit this is quite simple. If you are given two function fx and gx, both are limit of both exist, तो लिमिट अगर x टेंड्स टू a है तो ये इसको भी देना है, प्लस का साइन है तो प्लस का माइनस का, और लिमिट जो है वो इसको भी देनी है, अलग अलग लिमिट दोनों को देनी है. सिमिलरली डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लगा दो, डिवीज़न है डिवीज़न लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू a gx मीन्स लिमिट जो है वो प्लस माइनस साइन के साथ दोनों फंक्शंस को देनी है, और प्रोडक्ट और डिवीज़न में भी दोनों फंक्शंस को लिमिट सेम देनी है. Now before we start exercise 13.1, we have two results. For any positive integer n, limit x tends to a, x raised to power n over x minus a is equal to n into a power n minus 1. So this is our first formula, x raised to power n minus a raised to power n over x minus a is equal to n a power n minus 1, where a is positive. Limit of trigonometric function, now this is from the sandwich theorem. Limit x tends to 0, sin x upon x is 1. Limit x tends to 0, 1 minus cos x upon x is 0. So these two results we will use in the solving the exercise. Now exercise is quite simple, very simple exercise. You have to calculate the limit x tends to 3 x plus 3. यहाँ पे 3 पुट कर देना बस, 3 plus 3 6. x tends to 1
r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, r को 1 पुट कर देना है, आंसर इज पाई। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 10, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x पावर 10 x प्लस x पावर 5 1 ओवर x माइनस 1, x की जगह -1 पुट कर देना है, you will get -1/2. Limit x tends to 0 x plus 1 power 5 minus 1 over x. Now if you put here 0, it will be 0/0 form. So what we have to apply the result. If x tends to 0, then x plus 1 tends to 1. तो मैंने x plus 1 tends to 0 कर दिया, x plus 1. If x tends to 0, then x plus 1 tends to 1. So x plus 1 tends to 0, then x tends to 1. So limit x plus 1 power 5 minus 1, नीचे plus 1 और minus 1 किया है x के साथ. So if you see your result, x raised to power n, x raised to power n, this is the result. Limit x tends to a, x power n, x minus a is equal to n a power n minus 1. So we will use here x plus 1 tends to 1, x plus 1 tends to 1. Now x power n minus a power n over x minus a, limit x tends to a, this will be n a power n minus 1. So answer will be, what is n here? 5. A is 1 power 5 minus 1, 5 into 1 power 4 means 5. Next is question number 8. Limit x tends to 3, x power 4 minus 81 upon 2x square minus 5x minus 3. So first, if you put 3, it will be 0/0. So let we factorize it. x पावर 4 और 81, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर. सो x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर प्लस 9 ओवर इसके फैक्टर बना लिए 2x प्लस 1 x माइनस 3. इसके फिर फैक्टर बन गए x प्लस 3 x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 3 x माइनस 3. x माइनस 3 कैंसिल हो गया. यू आर हैविंग x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 ओवर 2x प्लस 3. Now you can put x is equal to 3 here, here and here. You will get 108/7. Next is question number 10. Limit z tend to 1, z power 1/3 minus 1, z power 1/6 minus 1. Now z power 1/6, 1/3 can be written as 1/6 की पावर 2, क्योंकि 1/6 है, इसको अगर 2 कर देंगे पावर 7 तो ये 1/3 ही रह जाएगा. सो 1/6 स्क्वायर 1/6 की पावर 2 लिख सकते हैं 1/3 को. सो इट इज़ -1 स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, z पावर 1/6 माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, z पावर 1/6 प्लस 1 इंटू z पावर 1/6 माइनस 1. Z power 1/6 minus 1 is cancelled with this. You are having only z power 1/6 plus 1. Now if we put z is equal to 1, so 1 की power 1/6 1, 1 plus 1 2 is the answer. Question number 12. Limit x tends to -2, 1/x plus 1/2 over x plus 2. X tends to -2, we will take the LCM, 2 plus x, 2 plus x over 2x, 2 plus x over 2x और ये x plus 2. 2 plus x plus 2 कैंसिल हो गया, -2 पुट किया तो -1/4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. साइन ax over bx, लिमिट x टेंड्स टू 0. नाउ ax अपॉन मेरे को ax बनाना पड़ेगा फॉर द रिजल्ट. रिजल्ट क्या होता है? साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स a से यहाँ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो a से ही, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, a बार लिख लिया तो a/b तो आ गया बाहर, अंदर रहेगा लिमिट x टेंड्स टू a साइन ax ओवर ax. ये वैल्यू जो होती है ये 1 होती है बाय सैंडविच थ्योरम. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1. ये रिजल्ट है हमारे पास. सो ये लिमिट होगी 1. आंसर इज a/b. Question number 16.
limit x tends to 0 cos x upon pi minus x. You may directly put 0 here. Cos 0 is 1. This is 0. So 1 by pi is answer. Question number 17. cos 2x minus 1 cos x minus 1. 2x को पहले x में कन्वर्ट कर लो. cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x minus 1. 2 cos square x minus 1, एक ये minus 1 over cos of x minus 1. 2 cos square x minus 2 हो गया over cos x minus 1. 2 कॉमन ले लिया, cos square x minus 1, 1 को 1 square लिख लिया, a square minus b square की आइडेंटिटी लगा दी. cos of x plus 1 cos of x minus 1 over cos of x minus 1. So cos of x minus 1 जो है that will be cancel with this cos of x minus 1. You are having 2 cos x plus 1. So when you put x 0, cos 0 is 1, so it is 2 into 1 plus 1, 2 plus 2 into 2, 2 into 2, 4 is the answer. Then question number 19 is limit x secant x. So if you put this is 0, secant 0 is 1, 0 into 1 is 0 answer. Question number 20th is limit sin ax plus bx, ax plus bx. We have to calculate this. We have to find the limit of this. So multiply हमें चाहिए sin ax upon ax. तो sin ax upon ax बना लिया, मीन्स हमें x से डिवाइड कर दिया पहले थ्रू आउट, फिर a से यहाँ मल्टीप्लाई और a से डिवाइड. इस तरह से नीचे b sin bx बाई bx चाहिए, तो b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड. So now you check the limit. Limit of this x tends to 0 sin ax over ax. This will become 1. Sin ax over ax will become 1. इस तरह से sin bx over bx limit x tends to 0 is 1. So what is left? A plus b, a plus b, a plus b, a plus upon a plus b. On cancellation it is 1. Result हमने लगाया limit x tends to 0 sin x over x is 1. Then question number 23rd. Now first you have to, हमें ये read करना आना चाहिए function क्या है. We have to, in this question we have to find the limit of f of x, x tends to 0, and limit of f of x, x tends to 1. अब ये function ऐसे दो दे रखे हैं. What is the meaning of this? कि अगर x जो है वो नेगेटिव है या ज़ीरो है तो हमने ये फंक्शन लेना है, और अगर x जो है पॉजिटिव है तो हमने ये फंक्शन लेना है. मीन्स इफ़ आई विल चेक द लिमिट एट ज़ीरो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स. 0 माइनस मीन्स x जो है वो नेगेटिव साइड से है, मीन्स x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से है, ये नेगेटिव है, तो हमें फंक्शन 2x प्लस 3 लेना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन लेना है 2x प्लस 3. इस केस में वही x को हम 0 प्लस h 0 माइनस h पुट कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, सो दैट इफ x अप्रोचेज टू 0 देन h विल ऑल्सो अप्रोचेज टू 0. मीन्स हमें x की जगह अब h लिख लेना है. लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस h पुट कर देना है प्लस 3. h 0 आ जाएगा, ये 3 प्लस h जो है वो 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट आंसर जो है वो 3 आ जाएगा. देन अगेन वी विल कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट. फॉर द राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इफ इट इज 0 प्लस मीन्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमें फंक्शन लेना है 3 इंटू एक्स प्लस 1. सो एफ एक्स विल बी अवर 3 इंटू एक्स प्लस 1. नाउ अब हम पुट करेंगे x को 0 प्लस h मीन्स राइट हैंड लिमिट. सेम x टेंड्स टू 0 देन h टेंड ऑल्सो 0. वी विल रिप्लेस x बाई 0 प्लस h टेंड्स टू 0, अगेन दिस विल बी 3. सो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दे आर इक्वल. और अगर हम फंक्शन को f ऑफ x चेक करते हैं, f ऑफ x मीन्स एट x इज इक्वल टू 0,
एट एक्स इज इक्वल टू 0 में भी उसने क्या बोला हुआ है, फंक्शन ये लेना है, तो एक्स को 0 पुट करते हैं तब भी फंक्शन भी 3 आता है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू the value of the function at that point. So in this case limit will exist. Question number 26, same type. Limit x tends to 0 f of x, ये करना है कैलकुलेट, और f of x is given x upon mod of x. पिछले क्वेश्चन में एक पार्ट और रह गया था, लिमिट x टेंड्स टू 1. सो इफ़ यू कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, x को 1 पुट कर देना है तो 3 2 6 आ जाएगी, दूसरा पार्ट था ये. एंड कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f of x, दिस विल बी 6. क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x where f of x is x upon mod of x if x is not equal to 0 and 0 if x is 0. तो 0 पे चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस किया, अगर 0 माइनस है मीन्स x is not equal to 0, so it means we will take the function mod x upon mod x. सेम स्टेप, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को पुट कर लिया 0 माइनस h, मीन्स इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, तो लिमिट 0 माइनस h, वैल्यूज पुट कर दी 0 माइनस h, ये मॉड की वजह से प्लस हो गया, आंसर माइनस आ गया. सिमिलर पैटर्न पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, राइट हैंड लिमिट में मॉड 0 प्लस h तो प्लस h ही रहा मॉड का, तो ये लिमिट 1 आ गई. सो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई -1, राइट हैंड लिमिट आई +1, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट f of x does not exist at x is equal to 0. Then question number 28 is important. It is given that function जो है वो ax plus bx है when x is less than 1, 4 है when x is equal to 1, b minus ax है if x is greater than 1. तो हमें लिमिट x tends to 1 fx is equal to दे रखी है f of 1, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है. सो वी विल गो सेम, 1 पे चेक किया 1 माइनस एच पुट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट x की जगह 1 माइनस एच पुट किया तो a प्लस बी आ गया, राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच पुट किया, सो वी विल हैविंग b माइनस ए, ये दे रखा है इक्वल टू 4 ले लिया, देन वी विल कैलकुलेट a प्लस बी, b माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, b माइनस ए इज इक्वल टू 4, दो लीनियर इक्वेशंस बनी है, दोनों को सिंप्लीफाई किया, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 0. सेम क्वेश्चन नंबर 32, यू आर गिवन फंक्शन एफ एक्स एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन, अगर x नेगेटिव है, एन एक्स प्लस एम इफ फंक्शन इज बिटवीन 0 to 1, एन एक्स क्यूब प्लस एम इफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 1. तो कहते हैं लिमिट जो है वो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है इफ ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस में हमें फंक्शन लेना है एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन, और x टेंड्स टू 0 to 1 हमें फंक्शन लेना है एन एक्स प्लस एम. वी विल सेम डू, x में 0 माइनस एच, h टेंड्स टू 0, x में 0 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस, हमें वैल्यूज पुट कर दी h की 0, वी आर हैविंग n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m. सो हैज लिमिट विल बी एग्जिस्ट ओनली एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली इफ n इज इक्वल टू 1. सेकेंड पार्ट इज लिमिट x, सेकेंड पार्ट इज एट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 कैलकुलेट करना है, x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 प्लस. तो 1 माइनस के लिए 1 माइनस एच पुट किया, h टेंड्स टू 0, 1 प्लस के लिए 1 प्लस एच पुट किया, h टेंड्स टू 0,
ये ज़ीरो हो गया तो m आ गया, ये ज़ीरो हो गया तो n प्लस एक n बचेगा n, ये ज़ीरो हो गया तो n प्लस n, ये ज़ीरो हो गया तो n प्लस, यानी कि n प्लस n m इज इक्वल टू n प्लस m. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स. दोनों जो है वो n प्लस m आ रही हैं इक्वल. हैंस लिमिट एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n. थैंक यू.